चलिए अब ये प्रॉब्लम देखेंगे सर। You are the management accountant of publishing and printing company, which has been asked to code for the production program for the local Blaze Fair. The work would be carried out in addition to normal work of the company. Because of the existing commitment, some weekend working would be required to complete the printing of program. A trainee accountant has produced the following cost estimate based upon डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, प्रिंटिंग प्रेस डेप्रिसिएशन है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है, एस्टिमेटेड डिपार्टमेंट कॉस्ट है, टोटल दे रखी। यू आर अवेयर दैट कंसिडरेबल publicity could be obtained for the company if you are able to win this order, and the price quoted must be competitive. The following notes are relevant to the cost estimate above. The paper to be used is currently in stock at a value of rupees 5,000. It is of an unusual color, which has not been used for some time. The replacement price of the paper is 8,000, while the scrap value of that in the stock is rupees 2,500. The production manager does not foresee any alternate use for the paper if it is not used for the Blaze Fair programs. The ink required are not held in stock. They would have to be purchased in bulk at a cost of rupees 3,000. 80% of the ink purchase would be used in printing the program. No other use is foreseen for the remainder. आगे पढ़े। Skilled direct labor is in short supply, underline करें, and to accommodate the printing of programs 50% of the time required would be worked at weekend, for which a premium of 25% above normal rate is paid. Okay, unlike unskilled लिखा है, इसे unskilled कर दें, टाइपिंग एरर है, unskilled कर दें इसे। Unskilled labor is presently underutilized, underutilized पे भी underline करें, and at present 200 hours per week are recorded as idle time. If the printing work is carried out at weekend, 25 unskilled hours would have to occur at this time, but the employee concerned would be given 2 hours time off. For this they would be paid in lieu of each hour's worked. Variable overhead represent the cost of operating the printing presses and binding machine. When not being used by the company, the printing press is hired to outside company for 6 per hour. This earns a contribution of rupees 3 per hour. There is unlimited demand for this facility. Fixed production costs are those incurred by and absorbed into production using an hourly rate based on budgeted activity. The cost of the estimating department represent time spent in discussion with the Blaze Fair committee concerning the printing of program. Required, prepare a revised cost estimate using the opportunity cost approach, showing clearly the minimum price that the company should accept for the order. Give reason for each resource valuation in your cost estimate. ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत पढ़ने में लेंदी होते हैं, बट सॉल्यूशन करने में बहुत ही इजी होते हैं अगर आपको उनके कॉन्सेप्ट पता है तो। अब देखें, हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम प्राइस, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमें रेवेन्यू नहीं दे रखी है।
ठीक है, एक एक करके हम आइटम्स को देखते जाएंगे और उसको करते जाएंगे। सबसे पहला है पेपर। पेपर कितने का है? 5000 का है। अब पढ़ेंगे पेपर क्या था। ये करंटली स्टॉक में है, ये अनयूजुअल कलर है, ठीक है। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2500 है। तो पेपर वर्किंग नोट 1 लिखेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे। ऑब्सोलीट नेचर है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, बेच सकते थे हम इसमें, वो हो गया हमारा 2500। दूसरा आइटम क्या है? इंक। इंक के बारे में पढ़े। इंक लिखा है इंक रिक्वायर्ड आर नॉट हेल्ड इन स्टॉक। तो इंक जो है हमारी आउट ऑफ स्टॉक है। इसमें से जो 20% स्टॉक है उसका कोई यूज नहीं है, लिखा है इन्होंने। अगर कोई यूज होता तो हम उसको अपने उसमें कंसीडर कर लेते। देखो, द इंक आर नॉट हेल्ड इन, दे वुड हैव टू बी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 3000। 80% उसमें यूज हो जाएगी। यहां देखिए, नो अदर यूज इज फोरसीन फॉर द रिमाइंडर, ठीक है। तो इंक की कॉस्ट कितनी हो गई? 3000। अब है वर्किंग नोट 3 लेबर के लिए। लेबर में हम पहले बात करेंगे स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर क्या है? स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई। तो एक तो ये कैजुअल है और ये बिजी भी है। जब कैजुअल और बिजी होती है तो हम क्या करते हैं? अच्छा, लेकिन यहां पर हमें ये नहीं दिया है कि ये हमारी ये कहीं नहीं दिया है कि ये कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट प्लस बेनिफिट लॉस्ट। तो अब लेबर कॉस्ट की बात करेंगे। कितने घंटे काम करना है इसमें देखा जरा। स्किल्ड लेबर है 250 घंटे की। तो इसमें नॉर्मल लेबर कॉस्ट में कहेंगे नॉर्मल कितना है? 125। और ओवर टाइम पे कितना है? ठीक है। अब सेमी है, अनस्किल्ड है, ये अनस्किल्ड है, इसको अनस्किल्ड लिखेंगे। अनस्किल्ड ये हमारी कैसी है? परमानेंट लेबर है भाई। आइडल टाइम तो परमानेंट लेबर का ही होगा ना। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? नील। संक मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारी लेबर आ गई वर्किंग नोट 3 से 1125।
अब फिर बात करेंगे हम वेरिएबल ओवरहेड की। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? वेरिएबल ओवरहेड है represent the cost of operating and the printing press when not being used by company. The printing press is hired to outside company. चलिए, तो वेरिएबल ओवरहेड में तो कुछ नहीं है, ये तो आपके जो लग रहे हैं वही आ जाएंगे। इसके बाद इन्होंने बोला है फिक्स्ड ओवरहेड, ये हम मानेंगे अनअवॉइडेबल है, तो ये कितने लेंगे हम? नील। और कुछ है? अच्छा, एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, ये हम क्या मानेंगे? फिक्स्ड है, तो यहां पर नील आएगा। अब इसमें ऐड होगा बेनिफिट टू बी लूज ड्यू टू ऑफर। इन्होंने कहा था मशीन हम किराए पे दे सकते थे, और वो मशीन हम किराए पे देंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा? 6 रुपए में जाएगा। ये देखो कहाँ लिखा था, ये देखो, ये हार्ड कर सकते हैं आउटसाइड बंदे को 6 रुपए में, और इससे हमें कमी जो कंट्रीब्यूशन मिलता है वो 3 रुपए का मिलता है। तो 200 इंटू 3, 600 रुपए। इन सबको ऐड कर दें, ये आएगी हमारी मिनिमम प्राइस जो हमें लेनी चाहिए। ठीक है, 8625। चलिए आगे बढ़ेंगे।